When we say there is a thin film, as I have discussed in my introductory class, we have a substrate, and over that there is a film. Right. Now let us magnify the area. इस रीजन को थोड़ा सा मैग्नीफाई करें. What can we see here? Is there are atoms of the substrate. This is the substrate S. This is the film. There are atoms on the substrate. उसके ऊपर फिल्म के एटम्स आते हैं. कुछ ऑलरेडी गिर चुके हैं और कुछ गिर रहे हैं. If you look into the process of something. ना ये जो atoms that are coming from source fall onto the substrate, these are called add atoms. Add, getting add atoms. So now the question is, this whole process of deposition, and the process is called deposition of film. Deposit कर रहा है film on the substrate. Now this whole process, it takes place, खुला भी होता है लेकिन usually it takes place in an enclosed system or enclosed chamber. मैं उसमें बात पे आ रहा हूँ. अच्छा, now the question is, if there are add atoms coming, so there must be a source. एक atoms का एक source तो होगा जहाँ से ये atoms नीचे गिर रहे हैं. Has to be a source. Secondly, tell me one thing, what is the difference between the atoms on the surface and atoms on the bulk? अगर मैं, ये तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन में देखा, लेकिन नॉर्मली 3 डायमेंशनली अगर हम देखें तो मान लो दिस इज सबस्ट्रेट, ऐसा है ना. ये सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर फिल्म आके गिरा. ये तो tell me, what is the difference that you can think of between the bulk atoms, यहाँ पर भी इसके atoms हैं, ये
बीच के एटम्स को ड्रॉ नहीं किया। तो ये जो टॉप लेयर का जो एटम है, ये वाला लेयर, ये लेयर, let's call it as layer 1. Now, if you go inside, consider this as layer number 250. So, atomic layers बोलते हैं AL, और इसको या फिर also called as monolayer. Atomic layers और monolayers. जो टॉप का एटॉमिक लेयर है, उस एटॉमिक लेयर में और 250th एटॉमिक लेयर में, इसका भी एक लेयर बना है, इज ऑल्सो लेयर। देयर आर 2 layers, one is number 1 and another one is number 250। दोनों लेयर में बेसिक डिफरेंस क्या लगता है? मैं क्लिक कर देता हूँ 3D एंड 2D। ये 250th लेयर है, इसके एक्स एक्सिस में भी बॉन्ड है, वाई एक्सिस में भी बॉन्ड है, जेड एक्सिस में भी बॉन्ड है। लेकिन जो फर्स्ट लेयर है उसके एक्स एक्सिस में बॉन्ड है, एटम्स है, ऊपर वाला इट्स नॉट बॉन्डेड। ठीक है। सो फ्रॉम ए 3D सिस्टम, when we are talking about surface, we are talking about 3D to 2D transition, because ये जो इसके टॉप सरफेस के जो एटम्स है, इसका जो बॉन्डिंग वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसमें these are free, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है ना। तो फिर मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये नंबर 250 है, इसके ऊपर एटम्स है, 250 के ऊपर 249 लेयर है के एटम्स है। ठीक है। लेकिन वन लेयर के ऊपर there is no zeroth layer, so these bonds are free, open space। इस टाइप of bonds को हम लोग बोलते हैं dangling bonds। Dangling bonds. Now, since they are free, they are highly reactive. Reactivity ज़्यादा है, they are highly reactive and they are highly energetic. Since they can easily react with any other substance, they are highly energetic. तो एनर्जी ये नंबर 1 लेयर का बहुत ज़्यादा है as compared to layers below। ठीक है। अच्छा, कोई भी फिजिकल सिस्टम जिसका एनर्जी ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, वो हमेशा चाहता है कि कम्स टू द लोअर। सो द सेम थिंग विल डू इट। सो द टॉप लेयर एटम्स which are at a higher state, we try to minimize their energy and come to low state। This process of minimization of the top atoms, their atoms, is called RRR नहीं, ठीक है, RNR। RNR stands for relaxation, and
attraction. Relaxation and reconstruction. Relaxation and reconstruction are at the top level in your atom cell. इनके साथ बैंडिंग फॉर्म देते हैं, वो अपने एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स, इस प्रोसेस का जो क्लासिक एग्जाम्पल है, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट, देन आई विल कम बैक टू द मैकेनिज्म। इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है उसको सिम्बॉलिकली इट इज रिटन इन दिस फॉर्म। इसका एक अलग अलग मीनिंग है सरफेस साइंस के रिस्पेक्ट में। SI स्टैंड्स फॉर SI एलिमेंट, चलिए तो फिर इसका मतलब क्या है? SI 1 you know the meaning of this is the light mirror indices. These are basically called Miller indices. Miller indices 111 लिखा है, ये basically HKL। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ा था लोगों स्कूल में, ठीक है। किसी भी प्लेन को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट्स नॉर्मल, है ना। इफ आई से दैट देयर इज अ 111 प्लेन, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट एनी नॉर्मल x y and z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y and z है, so there is a 111 plane. It means that the normal is through the plane is passing through 111. So if I just draw the 3 axes, ठीक है, ये हो गया हमारा 0। ध्यान से मुझे बहुत टफ नहीं, इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा केयरफुली। ये हो गया 0 0। और इस रूप का वो होना, ये कंसिडर दिस रूप एज अ क्यूब, आगे क्यूब नहीं, लेकिन कंसिडर दैट वेरी दैट वन, ठीक है। इससे हम लोग एक इस ये हो गया, ये क्या हो गया? दैट पॉइंट becomes it has moved x axis, so 1 0। similarly this one is 0 0 0, this one is 0 0, ठीक है, ओके। अभी if I draw a vector direction are usually represented by brackets 1 0। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। एनी वेक्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0 0, ठीक है। अभी मान लो डायरेक्शन नहीं बोल के मैं कोई प्लेन यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे
इस प्लेन का नॉर्मल क्या है? Which direction passes as a normal through this plane? This direction. So this plane is represented as planes को हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है ना, ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइन नहीं कर रहे, डायरेक्शन डिफाइन कर रहे। सो दिस इज 1 0 0 प्लेन। So this is 1 0 0 plane. Vector passing normal to it is 1 0 0 vector. ठीक है, उसी तरह से मुझे बोलो कि ये वाला प्लेन कौन सा हो, जस्ट हमारे पीछे ये वाई एक्सिस यहाँ से दिस विल बी 0 1 0, तो प्लस 1 0 1 0 सिमिलरली दैट वन होगा 0 0। अच्छा, अभी एक कार्डबोर्ड लाता हूँ मैं बहुत बड़ा, और कार्डबोर्ड का एक एज मैं इस एज के साथ मैच कराता हूँ, दिस एज, और दूसरा एज में मैच कराता हूँ उस एज के साथ, ऐसे। सो इट विल बी समथिंग लाइक ठीक है। और बच्चे हम लोग यहाँ यहाँ तो यार ये कौन सा कैसे पैटर्न करोगे? यहाँ पे कौन कौन सा डायरेक्शन मूव हो रहा है? जेड नहीं, एक्स एंड वाई। व्हाट इज दैट पॉइंट? सो दिस इज 1 1 0 डायरेक्शन और 1 1 0। उसी तरह से सिमिलरली इज द केस फॉर 1 1 1। एक ट्रायंगुलर शेप का मैं कार्डबोर्ड लाता हूँ, ट्रायंगुलर शेप का कार्डबोर्ड का एक कोना वहाँ पे, एक कोना यहाँ पे और एक कोना यहाँ पे, लाइक दिस। तो दिस बिकम्स, ये डायरेक्शन क्या है, मतलब और इट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, ऐसे। ये हो जाएगा मेरा दिस वन विल बी माई 1 1 1 डायरेक्शन and 1 1 ठीक है। इसको घर में जाकर प्रैक्टिस करोगे। सो दिस सिंबल मीन्स डायरेक्शन और ये सिंबल मीन्स प्लेन। अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ दैट मीन्स इट इज अ प्लेन। तो सिलिकॉन कॉर्बन, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट एटम्स, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके एटम्स हर एक कोने में हर एक एटम जाते हैं। तो कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको जानने के लिए हम लोग दिस प्लेन एंड डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिकॉन 111 मतलब इसके जो एटॉमिक अरेंजमेंट्स हैं इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट रिजेंबल्स अ 1 1 1 डायरेक्शन, इसलिए इसको सिलिकॉन 111 कहा है। अच्छा, नाउ व्हाई इज दिस थिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ सरफेस रिकॉन्स्ट्रक्शन? सिलिकॉन का भी एक सरफेस होगा, सिलिकॉन 111 का भी एक सरफेस होगा। तो सिलिकॉन का 111 का सरफेस जब आर आफ्टर आर मीन्स आफ्टर रिलैक्सेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन, हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन सरफेस 111 से कन्वर्ट हो जाता है 7x7। इसका मतलब उसको कौन इसको एक्सप्लेन करता है? राइटिंग सिलिकॉन 111 और सिलिकॉन 111 की ओनली सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको लिखा जाता है एज सिलिकॉन 111 7x7। इसका मतलब क्या हुआ?
तीन इंडिसेस थे, यहाँ पे कोई इंडिसेस है, तो देयर इज अ, हम लोग इसका मतलब हमने सरफेस के बारे में बात करें। सरफेस में तो कुछ एक्स एक्सेस नहीं होता, सरफेस वाई एक्सेस ही होता है, वाई एक्स एंड वाई। और 7x7 मतलब ये 7 टाइम्स बड़ा हो गया। Since it has to relax to minimize its energy, the atoms are now 7 times distant than what were they in silicon vanagon. तो ओरिजिनल सिलिकॉन वनागोन के अंदर में तुम लोग चले जाओ, एटम्स का जो डिस्टेंस था एक एटम से दूसरे एटम के बीच, वो 7 टाइम्स बढ़ गया है सरफेस। इसको रिप्रेजेंट है, इसको कोई किसी भी सरफेस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज अ नेम टू इट, सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स। There is one another type of notation apart from Woods notation. एक हो गया Woods, दूसरा हो गया मैट्रिक्स नोटेशन। ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं अभी टॉप सरफेस विजुअलाइज कर रहा हूँ, साइड से मैं ऊपर से, ठीक है। मान लो तुम्हारा जो बल्क या जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स वो ऐसा था, ठीक है। इसके ऊपर आके गिरा तुम्हारा सरफेस है, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, ये है सरफेस एटम्स, या फिर ये जो वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग A1 एंड A2 यूज करेंगे। तो A1 एंड A2 सरफेस के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो इस डिस्टेंस को ले लेते हैं A1। अच्छा चलो इसको B लेते हैं, stands for bulk and S stands for surface. So ये हो गया B1 x एक्सिस, दो एटम के बीच का डिस्टेंस, एंड ये हो गया ये हो गया B1 एंड दिस इज B2। ठीक है, अब सरफेस का भी उसी तरीके से होगा। सरफेस में ये डिस्टेंस हो गया S1 एंड ये डिस्टेंस हो गया S2।
टू दिस वन। ये जाके इसके ऊपर गिरा है, 1 2 3 4। अब इन दोनों का मुझको अगर रिलेशनशिप देखना है तो आई कैन से दैट S2 is equal to V2, but S1 is equal to 2 into V1। ठीक है, देखो बिकॉज जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है वो डबल होगा, तो इसी को वेरी सिंपली आई कैन राइट एज प्लस 0 इंटू V2, बिकॉज 0 का कोई यहाँ पे V2 का कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 0 इंटू V1 ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको थोड़ा सा 1 and 2 को मैं ठीक से अरेंज कर दूँ, सो आई कैन राइट S1 as equal to 2V1 plus 0 V2, S2 as equal to 0 V1 plus V2। Matrix बनाया ना तुम लोगों ने, you know what is the matrix? So simple I can writing it as a matrix, S1 S2 is equal to V1 V2। कितना होगा एलिमेंट्स को? 4 एलिमेंट होंगे, 2 0 0 1। ठीक है, सो दिस इज द मैट्रिक्स। बहुत आसान है, कुछ है ही इसमें, इट्स अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और ये जो प्रोसेस है कि एटम में ऐड एटम आके जो सरफेस एटम के ऊपर बैठ रहा है, इस प्रोसेस को लोग बोलते हैं एपिटैक्सी और एपिटैक्सियल ग्रोथ। एपिटैक्सी का एक लाइन में कोई अगर तुमसे पूछे व्हाट इज एन एपिटैक्सी, यू से दैट क्रिस्टल ऑन अ क्रिस्टल। ओरिजिनली एक सरफेस क्रिस्टल था, ऐड एटम ऊपर से अच्छा ऊपर की जो सरफेस एटम से ये आइदर रिकॉन्स्ट्रक्टेड एटम हो सकते हैं या फिर फॉरेन एटम हो सकते हैं, दोनों केसेस में जो सरफेस एटम से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एपिटैक्सियल ग्रोथ इज व्हेन सम फॉरेन एटम्स आर फाउंड एंड गेटिंग डिपोजिटेड ऑन द सरफेस। सो उस केस में क्रिस्टल फॉरेन एटम्स का अपना खुद का एक क्रिस्टल बन रहा है ऑन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग क्रिस्टल ऑफ द सरफेस। सो इट्स क्रिस्टल ऑन क्रिस्टल। हाँ, एक रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन से बना है, ठीक है, उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है। तो दूसरा केस है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एक रिकॉन्स्ट्रक्टेड सरफेस, उसके ऊपर में फॉरेन एलिमेंट है। मतलब इसके ऊपर मान लो सिलिकॉन 111 के ऊपर, इसके ऊपर मान लो मैं सिल्वर डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर उसका अलग डायनामिक्स होगा। मैं उसका अभी फिलहाल क्लासेस में नहीं जा रहा है, जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट दिस आर द टू थिंग्स। दिस इज कॉल्ड एपिटैक्सियल। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ये एटम्स आ तो रहे हैं लेकिन हाउ दे आर गेटिंग स्टक, स्टिक कैसे हो रहे हैं, ये आइडिया है। ये जो सरफेस एटम है तुम्हारा जो बेस बना है
हम लोग सेकेंड वाला केस कंसिडर कर रहे थे, फॉरेन एलिमेंट आ रहा है, इसके ऊपर एड एटम आ रहा है। वो सर एड एटम, हाउ दे आर गेटिंग स्टक, कौन से प्रोसेस से वो लग रहे हैं। इसको जानने के लिए तुमको जानना पड़ेगा कि जो एटम्स जब आके बॉन्ड बनाते हैं तो व्हाट इज द मैकेनिज्म है। से देयर आर टू एटम्स कमिंग, दो एटम है, बेसिक ए भी एक मॉलिक्यूल ले लो, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ए एंड बी। दे आर कमिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। If I plot energy versus distance, तो मेरा जो प्लॉट होता है वो looks something like this. एक्सिस मेरा जो प्लॉट दिखेगा एनर्जी का इस तरह से। आई थिंक यू हैव सीन दिस, इसको लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल बोलते हैं। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों जब एक साथ प्रेजेंट हो तो दे कम टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट दैट दे गिव अ मैग्नेट, दैट इज द इक्विलिब्रियम। तो यार ये थोड़ा बॉन्ड मैंने ज़्यादा किया। सो व्हेन दे आर अप्रोचिंग, ये जो रीजन है द मिनिमम एनर्जी रीजन, this is your R0 equilibrium region, your bond length of here. This is the equilibrium region. So why do they vibrate? Why do they attract first of all, and why do they repel first of all? तो इसके लिए if you go into the structure of an atom, atom में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है ऑर्बिट्स में, वेव फॉर्म ऑफ वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव। किस चीज़ का वेव है, एक चीज़ का इलेक्ट्रॉन वेव। वेव किस चीज़ का वेव है, डम्बल, डीज डबल डम्बल। स्फेरिकल का मतलब क्या है, इस वेव का मतलब क्या है, इस वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उस प्रोबेबिलिटी का वेव, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय दिस क्वांटिटी साई स्क्वायर। दिस इज प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट है, ज़्यादा हो जाएगा, साई स्क्वायर ई। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज द वेव फंक्शन। तो सिंस इलेक्ट्रॉन के बीच में पॉजिटिव है और उसके साइड में इलेक्ट्रॉन के एटम के बीच में पॉजिटिव है और उसके साइड में नेगेटिव है, तो दूर से एक पॉजिटिव और यहाँ पे बोल रहा है ऐसे नेगेटिव, व्हेन दे आर अप्रोचिंग अनदर पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव। सो इनिशियली इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है।
nucleus of one attracts the electronic distribution of the other and electronic at the customer. Initially they come as attraction they come closer, but जैसे after a certain distance जब close proximity में आ जाते हैं तो उनका जो like charges है positive nucleus as well as the electron they start to repel. तो हमेशा एक attraction potential ऐसा होता है. They are always in a state of vibration even at room temperature. ठीक है, और किस पोजीशन के एक बिट वाइब्रेट करना दैट इज द. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डाइपोल इंड्यूस्ड डायपोल. तो एटम्स के केस में क्या होता है कि इसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, सो एज इट काउंट्स सो देयर इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स बॉन्ड. यू हर्ड अबाउट दिस? हमने इसमें पढ़ा होगा. वैन डर वाल्स करेक्शन तो पढ़ा होगा, P v = 10RT A + V square. लेकिन ये दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बॉन्ड इसको वैन डर वाल्स बॉन्ड which is a dipole induced dipole. But there is already a dipole present. When the dipole comes to contact another electronic distribution, it creates a dipole. और दोनों dipoles are. ठीक है, तो the same thing happens with the atom.